ایک زمانہ تھا جب گھنے جنگل کے دل میں درختوں کی چوٹیوں تک پھیلی ہوا گیت گاتی تھی۔ پرندے صبح کے تاروں کے ساتھ جاگتے تھے، ہرنوں کے جھنڈ خاموشی سے گھاس پر شبنم کی لڑی چنتے تھے، اور دریا نیلگو روشنی میں اپنی ہی لہروں سے باتیں کرتا تھا۔ اسی جنگل کے کنارے ایک 12 برس کا لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام ارحم تھا۔ وہ گاؤں کے بچوں جیسا نہ تھا، نہ وہ کھیل کود میں دل لگاتا، نہ ہی شور شرابے میں۔ اس کی دنیا جنگل کے درخت تھے، پرندوں کی آوازیں تھیں، اور جانوروں کی خاموش آنکھوں میں چھپی صدیاں۔ ارحم کو لگتا تھا کہ جنگل صرف لکڑی اور شکار کی جگہ نہیں، بلکہ دھڑکتا ہوا دل ہے۔ ایک دن سورج کو طلوع ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ روشنی درختوں کی باریک شاخوں سے چھن چھن کر زمین پر اتر رہی تھی۔ ارحم نے اپنے کندھے پر پانی کی چھاگل رکھی اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے پسندیدہ درخت کے پاس پہنچا، مگر آج جنگل کی خاموشی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اببرا رأت تببی وج سرسران لت۔ ارحم نے بات کو محسوس کیا، جیسے کسی کی تکلیف جنگل میں لہروں کی صورت پھیل رہی ہو۔ وہ ایست ایست ایب۔ دھوپ کی کرنیں اس کی آنکھوں پر پڑ رہی تھیں۔ اچانک اسے جھاڑیوں میں کوئی بھاری سی حرکت سنائی دی۔ ارحم نے قدم پیچھے نہ ہٹائے، بل اب، کیونکہ اس کے دل میں خوف سے زیادہ احساس تھا۔ جیسے ہی اس نے جھاڑی چھو کر ہٹائی، سیمن زخم شرعتا، جسم بھاری سانسوں سے اٹھتا اور گرتا، آنکھوں میں درد کی سرخی، در زخم، اور پیٹھ پر ٹوٹی ہوئی نیزے کی لکیر۔ ارحم کو فوراً سمجھ آیا کہ جنگل کے کنارہ گیر شکاریوں نے حملہ کیا ہوگا، مگر شیر بچ نکلنے میں کامیاب رہا ہوگا۔ ارحم نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا، وہ شیر کے قریب بیٹھ گیا۔ شیر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ونظر خوفنا، وہ مدد کی پکار تھی۔ ارحم نے نرمی سے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میرے باپ نے مجھے سکھایا ہے کہ تکلیف دینے والا انسان نہیں ہوتا، انسان وہ ہے جو درد کو سمجھ لے۔ شیر نے آہ بھری۔ ارحم نے اپنی چھاگل کھولی، ہاتھ بھگو کر شیر کے زخم کو صاف کرنے لگا۔ جنگل کی ہوائیں جیسے رک گئی ہوں، پتوں کی سرسراہٹ بھی سانسوں کی طرح تھم گئی۔ وَأَرِندَ بَآوَازْنَ الْرَتَا، جیسے جنگل خود ارحم کے ہاتھوں میں اعتماد رکھتا ہو۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد ارحم نے شیر کے زخموں پر جنگل کی جڑی بوٹیوں کا مرہم لگایا۔ پھر اس نے شیر کو پانی پلایا۔ شرتوساء، اس کی آواز میں اب غصہ نہیں تھا، صرف توت۔ ارحم نے شیر کے قریب ہی بیٹھ کر اس کا پہرا دیا۔ وَنْشِيرُ أَبَآسٍ أَسُوسَتَتْ، رات کی دھیمی روشنی جنگل پر اتری۔ چاند کبھی بادلوں کے پیچھے چھپتا، کبھی نمودار ہوتا۔ ارحم نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ پھاڑ کر آگ جلائی، تاکہ جنگلی جانور قریب نہ آئے۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر وہ سویا نہیں، کیونکہ ایک زخمی جانور نے اس کے دل میں ذمہ داری جگا دی تھی۔ کافی دیر بعد شیر نے ہلکی آواز میں سر اٹھایا۔ وَأَبِ اللِّجِسَ بِبَسِّنَتَا، آنکھوں میں روشنی سی لوٹ آئی۔ اس نے اپنی بھاری زبان سے ارحم کے ہاتھ کو چھو لیا۔ شرتا، محبت اور اعتراف کا۔ اگلی صبح جب سورج درختوں سے جھانکا، جنگل جیسے ارحم کو آسمان سے روشن سلام دے رہا تھا۔ شرن ایست ایستی و زخم اببتمر دردم وتا، ارحم نے پیچھے ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ شرن قدم لن رلا، ارحم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ نظر ارحم بن بولا، نظر بولت، انسانیت وہ روشنی ہے جو جنگل کو بھی بدل سکتی ہے۔ الاذن ارحم روز جن آتا، شیر اس کا انتظار کرتا۔ ایک دن شیر نے اسے اپنے ٹھکانے تک لے جانے کی اجازت دی۔ وہ جگہ اتنی پرسکون اور خوبصورت تھی کہ ارحم دنگ رہ گیا، جیسے پہاڑ کی گود میں چھپا ہوا سنہرا کمرہ ہو۔ ارحم کو معلوم ہوا کہ شیر تنہا نہیں تھا، اس کے 2 بچے بھی تھے۔ وہ بھی زخمی باپ کی وجہ سے خوفزدہ تھے، مگر جلد ہی سمجھ گئے کہ ارحم ان کا دشمن نہیں، دوست ہے۔ وقت زرتا، ارحم نے شیر کو مکمل صحت مند کر دیا۔ ابشر مزور تین محتاج، ایک دن وہ ارحم کے پاس آیا، اس کے گرد چکر لگایا اور زور سے گھالا۔ وہ دھاڑ جنگل میں گونج کر پھیل گئی۔ الوداعنا وعدتا، ارحم نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا کہ دوستی ضرورت پر نہیں، احساس پر ہوتی ہے۔ جنگل اس دن پہلے سے زیادہ زندہ لگا۔ وَإِنَرْمَ در شفافتا، پرندوں کی آوازیں زیادہ میٹھی تھیں، جیسے انسانیت نے واقعی جنگل کو بدل دیا ہو۔ سیلو بعد جب ارحم بیوا، لوگ اسے جنگل کا محافظ کہتے تھے۔ وہ بچوں کو سکھاتا تھا، انسان وہ ہے جو مدد دے، نہ کہ اپنے فائدے کے لیے سب کچھ تباہ کرے۔ اکثر شام کے وقت ارحم جنگل میں بیٹھتا
और कहीं दूर से शेर की धाड़ आती। वदु अस अद्दलैत के कभी एक दिन एक बच्चे ने जख्मी शेर का जख्म भरा, और इस एक अमल ने पूरे जंगल की रूह बदल दी। उलिम हता, जब इंसानियत ने जंगल को बदल दिया। और ये वो दास्तान तारहम और जख्मी शेर की। जंगल के इस वाक़ये को कई महीने गुजर चुके थे। अरहम अब पहले से ज्यादा मोहतात और बाहिम्मत हो चुका था। इसे ऐसा लगता था जैसे जंगल की हर सांस इससे वाकिफ हो चुकी हो। दरख्त इसकी आमद पर होले से सरसराते, परिंदे खुशी से चहचहाते, और जानवर इसके कदमों की चाप पहचानने लगे थे। मगर एक सुबह जंगल का मंजर बदला हुआ था। दरिया की लहरों में अजीब बेचैनी थी। हुआ भारी और गर्म, जैसे जंगल के दिल में कोई खौफ की लकीर खिंच गई हो। अरहम ने फौरन समझा कि कुछ ठीक नहीं। इसने तेज कदमों से जंगल की गहराई का रुख किया। रास्ते में बैठे खरगोश भी घबराए हुए थे। परिंदे दरख्तों की ऊंचाई पर जा छुपे थे, जैसे कोई खतरा जमीन के करीब भटक रहा हो। अरहम जब शेर के ठिकाने के पास पहुंचा तो मंजर देखकर इसका दिल कांप उठा। शेर के बच्चे कुछ फासले पर बैठे थे, और शेर खुद चक्कर काट रहा था। इसकी आंखों में इस्तिराब, इसके जिस्म पर नए जख्मों की हल्की हल्की सुर्खी, और जमीन पर गहरी जूतों के निशानात। इरहम करीब आ, शेर ने इसे देखते ही रास्ता छोड़ा। जिस वराऊ दो इरहम जिल्लर महदुन बिरूस आफिन, खतरा फिर लूट आया है। अरहम ने जमीन का जायजा लिया। ये आम शिकारियों के निशान न थे। ये ऐसे आदमियों के कदम थे जो जंगल में नई जमीन तलाश कर रहे थे, दरख्त काटने और बस्ती बनाने के लिए। वो रोशनियों की एक लंबी कतार लाना चाहते थे, जो जंगल के हर अंधेरे को मिटा देगी, लेकिन इसके साथ जंगल की रूह भी मिट जाएगी। अरहम ने शेर की आंखों में देखा, और शेर ने इसके दिल में हिम्मत की आग जगा दी। अरहम ने कहा, अगर इंसानियत ने एक बार जंगल को बचाया था तो अबिन असर थैबितुरनावा। रात होने से पहले अरहम गांव लूटा। इसने गांव के बुजुर्गों को बुलाया, सबको जंगल में होने वाली तबाही का बताया। लो हरान हुआ, मगर कुछ ने तवज्जो ना दी। कुछ ने कहा कि जंगल से बाहर लोग ताकतवर हैं। वदरखत अर वबर मुर इरहमरान, क्योंकि शेर ने इसे सिखाया था कि ताकत हिम्मत में होती है, हज्म में नहीं। अगली सुबह वो खुद अकेला जंगल के किनारे पहुंचा, जहां शिकारियों का कैंप लगा हुआ था। व अमैशल लैस फिलैद एर, और लकड़ियां गिराने की भयानक आवाजें थीं। अरहम आगे बढ़ा और सबके सामने खड़ा हो गया। आवाज में लर्जिश ना थी। इसने कहा, ये जंगल हमारा भी घर है। जनूर बजित वूद बसंसले, और इंसान तब इंसान कहलाता है जब दूसरों की सांस का ख्याल रखे। लोन सिनल, मगर अरहम ने हिम्मत ना हारी। अचानक झाड़ियों से दो शेर के बच्चे निकल आए। इन जख्मी मुर मदबूतुन शर, वो सीधा अरहम के पास आया और इसके साथ खड़ा हो गया। मंजर ऐसा था कि सब खामोश हो गए। एक इंसान और शेर मिलकर खड़े थे। नदशमन नशीर सरफ मुहाफिज, कैंप का सरबरा आगे बढ़ा। इसने कहा, इर्म जिल अदितौतम अरो। अरहम ने कहा, जिल तमरार मतन, तुमने इसे बनाया नहीं, तुम जानते भी नहीं कि यहाँ कितनी जिंदगियाँ बसती हैं। तमरस्त बिना सताओ, मगर रास्ते हमेशा फितरत को रौंद कर नहीं बनते। अगर तुम इस जंगल को छोड़ दो तो मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा जहाँ तुम्हें खुला मैदान मिलेगा, ना जानवरों को नुकसान, ना दरख्तों को। दिर खामोश। फिर लीडर ने अरहम की तरफ देखा, फिर शेर की तरफ। इसने आह भरी और कहा, तमशा इत्ताओ मिलना नजिना दिना जिनलर नडू। शेर स्मले, दरख्तों में जैसे नई जान आ गई। वर्लुआ रिंदनी अतर ए, दरिया साफ और शफ़ाफ हो गया। शेर ने आहिस्तगी से अरहम के गर्द चक्कर लगाया और अपनी पेशानी इसके कंधे से लगा दी। एहतिरामत एतिमादत। अरहम ने जंगल की तरफ देखा, जैसे आज जंगल ने इसे इंसान नहीं। ऐन अबू मल्लू, सामने दरिया पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, और अरहम ने मुस्कुरा कर कहा, जंगल तब बदलता है जब इंसान बदलता है। शिकारियों के जाने के बाद जंगल कुछ अरसा सुकून में रहा, जैसे हर दरख्त ने सिक्का सांस लिया हो। दरिया पहले से ज्यादा साफ हो चुका था, और हवा में खुशबू ऐसी गुली थी कि हर जरा जरा नया जन्म लेता महसूस होता था। इरहम रोज जिल जाता। शेर अब इसके पीछे चलने का आदी हो गया था। शेर के बच्चे भी अरहम को देखकर खुशी से उछलते, और अरहम उनके साथ खेलता। मगर जंगल में सुकून हमेशा देर तक नहीं रहता। एक दिन हुआ ने अपना रुख बदला।
रिंदबी वजबरा रआनल। दूर से दरिया का शोर बल गया, जैसे वो किसी आने वाली मुसीबत से खबरदार कर रहा हो। अरहम ने फौरन महसूस किया, जिल असी बिला रहता है। वो तेजी से शेर के ठिकाने की तरफ लपका। रास्ते में हर कदम जैसे बोझल होता जाता। तखमोश वर और खामोशी में खौफ का साया। जब वो शेर के पास पहुंचा तो देखा कि शेर बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। इसकी आंखों में परेशानी, और बच्चे दरख्त के पीछे दबके बैठे थे। अरहम ने आहिस्ता से पूछा, वाह? शेर ने घनी झाड़ियों की तरफ इशारा किया, जैसे वहां कोई और खतरा छुपा हो। अरहम मोहतात कदमों से आगे बढ़ा। जै तो मनज़रु दरदल अन इनुजवन त जख्मी तय। इसकी सांसें तेज, जिस्म पर गहरे खराशों के निशानात, और सबसे खौफनाक ये कि इसके जख्मों पर आग के जलने का असर था। इरहम हरान रहा। जंगल के जानवर एक दूसरे से लड़ते जरूर हैं, मगर आग से जख्मी करना सिर्फ इंसान का काम था। वो समझ गया कि जंगल के लिए नया खतरा पैदा हो चुका है, और ये खतरा शिकारी नहीं थे। ये कोई ऐसा गिरोह था जो जंगल को जलाकर रास्ता बनाना चाहता था, ताकि पूरे इलाके में नई जमीनें बनाई जाए। अरहम ने शेर की आंखों में देखा। शेर ने सर झुकाकर हल्की धाड़ की। ये धाव खौफ की नहीं थी, ये खबरदार करने की थी। जिनलर बिहमला वनवालता। अरहम ने फौरन चीते के जख्म साफ किए। मेरे साथ रहूं, मैं किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। वो इसे छांव में ले आया। शेर और इसके बच्चे भी आकर बैठ गए, जैसे जंगल की सारी मखलूक एक खानदान बन गई हो। अली सुबह इरहम लोगों को बताया कि कुछ लोग जंगल के हिस्से जला रहे हैं। वलबिरा, कुछ ने कहा। इरजिल जिल तू बर्श मुजै फसल मर जै, और गांव का मुस्तकबिल अंधेरे में डूब जाएगा। अरहम ने फैसला किया, व एलैनुली, इस बार पूरा गांव जंगल के साथ खड़ा होगा। रात को अरहम ने आग जलने की बो महसूस की। इसने फौरन शेर को बुला लिया। दोनों तेजी से जंगल की ऊपर वाली पहाड़ी की तरफ भागे। दूर रोशनी के शोले आसमान को चाट रहे थे, और इंसानों की आवाज़ें जो आग को मजीद फैलाने की कोशिश कर रही थीं। अरहम आग के सामने खड़ा हो गया और चलाया, रो, ये जंगल तुम्हें जिंदा रखता है। ऐतम बजिलैद, लोगों ने हंस कर कहा। मिरन मिज़म। इसी वक्त दरख्तों की कितार में से शेर निकला। इसके साथ दर्जनों हिरन, सैन, रिंद, और वो चीता जिसे अरहम ने बचाया था। सब एक सफ में। जिस वर फितरत एलान रो, जंगल हमारी सांस है। असवी नौसता वलू बरा इन अतलरजिल, क्योंकि इंसान हथियार से जीत सकता है, मगर फितरत के सामने कदम उखड़ जाते हैं। इतने में गांव वाले भी दौड़ते हुए आ गए। उन्होंने आग बुझानी शुरू की। मैल लीनैन, और थोड़ी देर में शोले कम होते गए। विलिम हता, जब इंसान, जनोर, और जंगल सब उआ। जब एबिज, शेर ने अरहम के करीब आकर इसके कंधे को छुआ। सिर्फ शिरिनता, ये ऐलान था कि अरहम अब सिर्फ जंगल का मुहाफिज नहीं, वो जंगल की आवाज़ है। अरहम ने आसमान की तरफ देखा। हुआ में सुकून वापस आ चुका था। रिंद दुबर एनत अर्थ, और दरिया जैसे खुशी से बह रहा था। जंगल ने एक बार फिर इंसानियत पर भरोसा किया, और अरहम ने एक बार फिर जंगल को बचा लिया। आग बुझने के बाद कुछ दिनों तक जंगल खामोश रहता रहा। दरख्तों की टहनियाँ जलने की वजह से उदास थीं। परिंदे नीची शाखों पर बैठकर जैसे एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। रिंदूर अदौरिन तबीत मुरबार बार मर्दा, कि कहीं आग दोबारा भड़क ना उठे। इरहम रोज जिल जाता, वो टूटी हुई शाखों को उठाकर अलग रखता, पानी की बाल्टी से जमीन को ठंडा करता, और हर जख्मी जगह को अपने हाथों से साफ करता। शेर और इसके बच्चे भी इसके साथ रहते। शेर के कदम जहाँ पड़ते वहाँ मिट्टी जैसे मजबूत हो जाती, जैसे जंगल खुद अपने मुहाफिजों को पहचानता हो। एक दिन अरहम जंगल के बेचे बीच गया। जोल तअस्त, अब वहाँ काले कोयले का फर्श फैला था। वो मिट्टी हाथ में उठाकर बोला, जंगल तुमने बहुत कुछ सहा है, मगर मैं वदा करता हूँ, जब तक सांस है तुम्हें दोबारा रोने नहीं दूंगा। अचानक इसे दूर से कुछ शोर सुनाई दिया। जिस अदरी खत अरार वो तेजी से आगे बढ़ा तो देखा कि चंद लोग बड़े बड़े नक्शों के साथ जंगल के अंदर उतर रहे थे। वजदर्त और आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री बनेगी। अरहम का दिल धक से रह गया। वो समझ गया कि असल खतरा अब शुरू हुआ है। अतौसर फलन कदमता,
असल मकसद था जंगल को साफ करके जमीन को बीच देना। अरहम ने उनके सामने आकर कहा, तम्मलू जिल अर बिना फिर कब्रिस्तान। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये दरख्त तुम्हें जिंदा रखते हैं। गिरोह का लीडर आगे आया और गुरूर से बोला, दुनिया आगे जा रही है। मिन इज़म तम इबू तम बदल लो। अरहम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जंगल है। इतने में झाड़ियों से शेर निकला, इसके पीछे चीता, रन बंदर और दर्जनों परिंदे। सबुन खमूश मुर मदबूतत इंसान सुमा। लेकिन लीडर ने हंस कर कहा, जनूर मेरा नसत मारा असमुशिन। हमारे पास आग है। अरहम ने शेर की आंखों में देखा और शेर ने आहिस्ता से सर हिलाया। जिस राव वक्त आ गया है। इरहम ए उलुआ। और वहाँ के बुजुर्गों को समझाया, इरजिल तू बर्श मुजा वर मुनुजी दुरी खशुजान। और तुम्हारी जमीन बंजर हो जाएगी। इस बार पूरा गांव इसके साथ खड़ा हो गया। हर औरत, मर्द और बच्चा वो दरख्तों के सामने खड़े हो गए। ए इंसानी दीवार बून। दूसरी तरफ जानवरों की कतार, जैसे फितरत दो हिस्सों में बट गई हो। ए तरफ लल दूसरी तरफ महब्बा। लीडर ने गुस्से में हुक्म दिया, मुशिन आबी जिस मुशिनी आब। अरहम ने शेर के साथ जोर से आवाज लगाई। बस हुआ का रुख बदला। दरख्तों की चोटियों से गिर्द उड़ी, परिंदे आसमान में दायरे बनाने लगे। दरिया जोर से बहा और जंगल ने जैसे चीख मारी, एक ऐसी आवाज जिसमें सदियों का दर्द था। इंसानों के हाथ खुद रुक गए। मशीनें जमीन में धंसने लगे, जैसे जंगल ने उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया हो। लिर इसने देखा कि कुदरत खुद अरहम के साथ खड़ी है। वह हरान रा और बोला, जिनल जिता। लोग फैक्ट्री का मंसूबा छोड़कर वापस चले गए। जिल जिस्लिम सेंसलर जिंदुआ वर नरमुआ तदुबारा रवनल। दरिया में चांद की रोशनी झिलमिलाने लगी। शेर अरहम के पास आया और इसके सामने बैठकर आंखें बंद कर ले। एहतिरामता वफत्तरत। ये ऐलान था कि अरहम अब सिर्फ मुहाफिज नहीं, अब वो जंगल का रहनुमा है। रात के वक्त चांदनी में अरहम ने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जंगल ने मुझे बचपन से देखा है। अब वक्त है कि मैं जंगल को हमेशा के लिए महफूज कर दूं। ऐनी अखतम नवत। बल्कि नया सफ़र शुरू है। जंगल में सुकून वापस आया तो अरहम ने सोचा, अबुन सभी उजाअन जनूर महफूज दरखत जिंद। और लोग जंगल को हाथ नहीं लगाएंगे। मगर किस्मत ने एक आखिरी इम्तिहान बाकी रखा था। एक सुबह अरहम ने देखा कि गांव के बाहर शोर है। लू जमात। और बीच में एक मजबूत कद काठ वाला आदमी खड़ा था। रिनवर सफिदा दरतला। और हाथ में लकड़ी का असा। ये अरहम का चचा था, नुअमान। जो बिरस्यूल और दुन इदनलता। अरहम दौड़ता हुआ इसके पास गया। चचा ने इसे सीने से लगा लिया और बोला, मुझसब तल्लन। जंगल की आग, शहर, फैक्ट्री के लोग और तुम, एक बच्चे ने ये सब रोक दिया। अब मैं वापस आया हूँ। तमरी मदद रसू अनुमान आमी आदमिनता। वो जंगल का पुराना दोस्त था, जड़ी बूटियों का माहिर, कुदरत की जुबान समझने वाला और जानवरों से ऐसी मोहब्बत रखता था कि वो इस पर एतमाद करते थे। चचा नोमान ने जंगल का दौरा किया। इसने टूटी शाखें देखे, जख्मी दरख्तों को छुआ और शेर के सर पर हाथ रखा। शेर ने भी आंखें बंद करके एतमाद का इजहार किया। बौलन। जंगल की जुड़े जख्मी हैं। अगर हमने अभी देखभाल ना की तो आने वाले सालों में ये कमज़ोर हो जाएगा। अब वक्त है जंगल को फिर से जिंदा करने का। अरहम ने कहा, चचा मैं तैयार हूँ, अब बताएं क्या करना है। चचा ने गांव वालों को जमा किया। सब ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। पहले दरख्तों की नर्सरी बनेगी, फिर जलने वाले हिस्सों में नई कलियां लगाई जाएंगी, दरिया के किनारों को मजबूत किया जाएगा और सबसे अहम, जंगल के अंदर एक ऐसा हिस्सा बनाया जाएगा जिसमें इंसान दाखिल नहीं होगा। वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर जानवरों का होगा। ये मंसूबा पूरे गांव ने कबूल किया। बो आउरा। सब काम में लग गए। वउद आराता वआनी अलराता वअज़मिन मुवार राता। और शेर हमेशा अरहम के साथ खड़ा रहता। चचा नोमान ने एक और काम किया। इसने जंगल और गांव के बीच एक लकड़ी का बड़ा दरवाज़ा बनाया। जसलता जिल मारान। हम जंगल के हैं,
وقت زرته ما بت اسے اور جنگل پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ درختوں کی نئی کلیاں آسمان کی طرف بڑھنے لگے۔ دریا شفاف ہو کر موتی کی طرح چمکتا، رند دوبار الوآئ اور جنگل میں ایک ایسا سکون پھیل گیا جو صرف محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک دن شام کے وقت ارحم اپنے پسندیدہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ چاند دریا میں جھلمل رہا تھا ونرمت اور پاس ہی شیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بچے اب بڑے ہو چکے تھے، تقتور خبصور اور آزاد۔ چچا نعمان ارحم کے پاس آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، بے تم نے وہ کر دکھایا جو بڑے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انسانیت نے جنگل کو بدلا، مگر اصل بات یہ ہے کہ تم نے انسانیت کو بھی بدل دیا۔ ارحم نے دھیرے سے کہا، میں اکیلا نہیں تھا۔ جل مرسوت اور شیر اتومش میرا بائرہ شیر نے ہلکی دھاڑ لگائی، جسراو مبدون چاندنی میں ارحم، شیر اور چچا نعمان تینوں دریا کے کنارے بیٹھے رہے۔ جس فطرت انسان اور جانور ایک لمحے میں مل کر مکمل ہو گئے ہوں، ورت جس کے بعد جنگل کبھی کمزور نہ ہوا اے ابخوفز دنوا اور ارحم ہمیشہ یاد رکھا گیا، بطور جنگل کا محافظ اور انسانیت کا سفیر۔ ارحم اور زخمی شیر کی داستان مکمل ہوتی ہے، مگر جنگل کی سانسیں آج بھی اس بچے کا نام لیتی ہیں جس نے دل کے زور پر پوری دنیا بدل دی۔